Hello, everyone, and welcome to this our new episode of Podcast with Rakesh. And first of all, I wish very happy Republic Day to everyone. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट, ग्रोथ ग्रोथ पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। इसी में इसी क्रम में हमारी कुछ इंटरेक्शन हुई कुछ एक्सपर्ट से। इसमें हमने एक टॉपिक पाया व्हिच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So we decided that we should go for this topic of artificial intelligence and its intersection with the humanity. So इसके बिकॉज़ कि अगर हम अपना समय देखें तो पिछले काफ़ी समय से 1980s में, उसके बाद 1990s में इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद वी हैव came a long way from telephone to smartphone and all the way, and now we are talking about the artificial intelligence कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर रहा है विच इज हेल्पिंग आवर फॉर टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ द ह्यूमंस एज वेल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और उसके साथ-साथ जो कई चीज़ों में हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग का इश्यू भी है, कुछ फ़ियर्स भी हैं। इन सारी बातों को देखते हुए जो आज के मेहमान हैं हमारे इस फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ वन एडटेक कंपनी, अ, व वाईवेल EdTech Venture, and he's also a founder of the Vival Happiness Foundation. So he has a vast understanding of the artificial intelligence and expertise in that field, as well as a deep outlook for the humanity and what how it can help for the well-being and welfare of the people in large and for the social impact. Or he has a wide experience and diverse experience, has worked in different industries, and he has also worked in different countries. He wears a versatile personality, having multiple interests. So I have been very happy to interact with him and to learn from his insights. So now I would like to welcome. Now I would like to welcome Mr. Yogesh Kocharji. So yeah, so I am happy to welcome now. Yeah, sorry, my apologies for it. That's I okay. formally welcome Mr. Yogesh Kocharji. Yeah, he is also known as Yogi, which is nowadays a very popular name. So Yogi ji, very welcome in our sixth episode of Humanity and Artificial Intelligence. So we are looking forward to learn from your insight and reflections in many ways. और इसके साथ मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि लाइक एज यू आर कंफर्टेबल यू कैन यूज इंग्लिश एंड आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन हिंदी आल्सो। सो क्योंकि हमारी कई सारी ऑडियंस है विच इज मोर फेमिलियर एंड कंफर्टेबल विद हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो ये मेरा रिक्वेस्ट होगा। एंड टू स्टार्ट विद दिस सेशन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बारे में कुछ मेंशन करें, बताएँ लाइक अबाउट योर जर्नी एंड व्हाट यू हैव वर्क्ड ऑन and how you relate with this topic, and as well as you are author of one book, this The Road Ahead, so you can please share your views on it. Thank Thank you. you. Yeah. Thank you, Rakesh, and very warm welcome to this podcast. So, Rakesh, I'm about 58 years of age, and my journey started in an army household. My father was in the Indian Army, and that is how I sort of grew up all over the country. Or the last couple of years of my education were from Chandigarh, which is the Punjab University. Several years later, I also managed to complete my master's from Miami, US. और इस दौरान आई थिंक आई wasn't a very good student, to be honest. I remained an average student, but I was very interested in all kinds of outdoors kind of activities. So there was water skiing or snow skiing or rock climbing or mountaineering or
high altitude driving or gliding or flying, etc. Those were my interests. And fortunately, NCC afforded all those opportunities for us when we were growing up. अब आजकल एनसीसी का चलन घट गया है, बट आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल organization. It still is, and for those that understand, inculcates a sense of discipline in you. That was very good. Post which I joined the tea estates in Assam, and for 10 long years, I stayed in the tea estates. And from there, then I came back and I worked in India and in England and in America and back to India. Uh, Whereas my initial years may have been in the tea plantations, my subsequent years turned out to only be in IT. I'm not. I really don't even know how I maneuvered my journey. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी जर्नी हम लोग खुद डिसाइड नहीं करते हैं, और ऊपर बैठा कोई एक बूढ़ा आदमी है जो हिमालय पर्वत पे रहता है, कैलाश पर्वत पे, एंड वो डिसाइड करता है आपने क्या करना है. सो आई लाइक टू बी कॉल्ड इग्नोरामस, एंड दैट्स माय कैपेसिटी. क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतने सारे काम मैं खुद कर कर पाता है, कर सकता. इवेंचुअली आई एंडेड अप बीइंग एट द लीडरशिप लेवल इन माइक्रोसॉफ्ट, और वहाँ से देन माय जर्नी बिगैन इनटू द स्टोरी ऑफ हैप्पीनेस, व्हिच इज़ व्हेन आई हैड डिस्कवर्ड दैट ज़िंदगी में हम लोग एक नौकरी करते हैं और फिर हम एक हैमस्टर में फँस जाते हैं. जैसे एक चूहा एक हैमस्टर में फँस जाता है, फिर वो दौड़ता रहता है without any meaning or without any substance, etc. And that awakening came to me nearly 11 years ago. What was the purpose of working? Well, everybody wants money, but nobody knows how much money you want. तो सबकी तकलीफ यही है कि सबको पैसा तो चाहिए, लेकिन कितना पैसा चाहिए वो किसी को पता नहीं है. विच वॉज द कोड दैट आई ब्रोक. आई थिंक मेरे को उसका ज्ञान मिल गया कि हमें कितना पैसा चाहिए खुश रहने के लिए और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, और ये नहीं देखने के लिए कि हमारे आसपास आजू बाजू में कितना है. और जब आपके अंदर अपना एक संयम आ जाता है, तो लोग आपकी तरफ देखना शुरू करते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है दैट ही इज ऑलवेज हैप्पी, और हमारे अंदर ये सब क्यों नहीं है, हम अभी भी क्यों दौड़ रहे हैं, एटसेट्रा. सो उसके ऊपर फिर बेस करके हमने अपना एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि बड़े शोध और रिसर्च में उसे हम बना सके. और वो जब सबका सब प्लेटफॉर्म हमारा बन गया, उसके बाद में हमें ये समझ आया कि वी हैड टू टेक इट अक्रॉस टू द एजुकेशनल कम्युनिटी. एंड टू डू दैट वी वेंट एंड अप्रोच्ड AICTE, व्हिच इज द हायर एड रेगुलेटर. तो उनके साथ में हमने बातचीत करनी शुरू की. अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सेक्टर जो हमारा है वो बड़ा रेगुलेटेड है. एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर से बात करना पसंद नहीं करता है. वो सब ने अपने अपने बैस्टियंस बनाए हुए हैं और सब कहते हैं नहीं नहीं ये हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए इनोवेशन हो नहीं पाती है. तो उसका हमने एक बड़ा सजीव उदाहरण हमने देखा अपनी खुद की जिंदगी में, कि पीपल डोंट कम एज फोर्थ कमिंग. अनलाइक इन अमेरिका यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड पीपल एनकरेज यू. हियर दे डोंट एनकरेज यू, दे कीप यू बॉटल्ड अप, और यही वजह है कि हम लोग ग्रो नहीं कर पाए. एनीवे दैट सेड, एंड वील टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, और इसके बारे में और भी बात करेंगे. लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हुई कि फिर AICTE, जो कि हायर एड का रेगुलेटर है, इनके पास 14,000 कॉलेजेस का संचालन करते हैं. एंड दे सेड या वी लाइक व्हाट यू क्रिएटेड, and this helps prepare guardrails in the mind, which is very very important in today's time and age, because social media के आ जाने की वजह से और AI के आ जाने की वजह से हम लोग एक सब प्रसुप्त अवस्था में चले गए हैं. we've all gone off to be in a place which is of deep sleep. डिमेंशिया, अब अगला स्टेज इसका डिमेंशिया होने वाला है, कि जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है तो डिमेंशिया सेट इन करने लग जाता है. तो मैं एक डिस्टोपियन फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, एंड स्पेशली आफ्टर द रीसेंट बुक दैट आई हैव रिटन together with eminent Professor Sitaram, who happens to be the chairman at AICTE, and he's an eminent scholar. He lived in Canada and America and Europe, etc. और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से उनका ताल्लुक है. तो उनके साथ में जब हम ये किताब के बारे में बात करनी शुरू की आज से 10-11 महीने पहले, तब हम देख रहे थे कि क्या होने वाला है. और मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान में अभी भी लोगों को समझ आई नहीं है कि हिंदू ये एआई क्या है. वो एक एआई को कोई एक नायाब सी चीज, इट्स लाइक अ यूएफओ, पता नहीं क्या है या क्या होने वाला है. लेकिन जब तक लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं और खुद से जानेंगे नहीं, तब तक ये सब के सब एक ऐसे सुनामी के अंदर फंसने वाले हैं
जो कि आ चुकी है, जो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, और नौकरियां खत्म हो जाएंगी और जिंदगी हमारी पूरी की पूरी तब्दील होने वाली है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. आई एम नॉट इवन सेइंग ईयर्स, आई एम सेइंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. सो ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी, एंड आई हैव they're doing well. So that's about me. Yeah. Yeah. Thank you so much for such a deep and detailed insight, and also sharing your views, uh, just reflecting and touching upon your recent book. So, जैसा आपने कहा कि एआई को लेके थोड़ा, तो मैंने भी कुछ इंटरेक्शंस करी लोगों से, तो व्हाट दे थिंक कि उनको मालूम है, लाइक दे थिंक कि जैसे हमारे पास मोबाइल इंटरनेट आया, मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, दे नाउ दे नो अबाउट द स्मार्टफोन की उसमें क्या फैसिलिटीज हैं, क्या फंक्शंस हैं। इन द सेम वे दे थिंक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है जो विच इज एन एडवांस वर्जन, और तो थोड़ा सा उनको हेल्प कर रहा है डिफरेंट उनके टास्क को अचीव करने में या फैसिलिटेट करने में कर रहा है। बट व्हाट आई थिंक कि थोड़ा जो डीप अंडरस्टैंडिंग है कि what changes it can bring to your personal and professional life, and how to adapt and adopt this technology in a larger interest of the humanity, or for the people in large। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक कंसर्न है, जहाँ पे एक ग्रे एरिया है, जहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो जी. मुझे लग रहा है जैसे आपने भी जो टच करा है अभी, तो एक्चुअली जो हम, जैसे आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा है, इसी तरह से जो हमारा ड्यूरिंग द सेशन जो हमारा डिस्कशन रहेगा, एज़ अ लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग, लाइक अ लेमैन पर्सन इज़ नॉट वेरी एक्सपर्ट इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, हू इज़ नॉट वेरी यूज्ड टू टेक्नोलॉजी, तो उसको भी समझ में आ जाए। तो पहले जैसे मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कोई नहीं जानता, वो पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे या कैसे बताएंगे, सो दैट एक जनरल पर्सन भी समझ सके उसको आसानी से। सो इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ. हम सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक साइकिल चलाना सीखा, राइट? तो जब हम साइकिल चलाना नहीं जानते थे, तो हम उसके ऊपर चढ़ते थे और गिर जाते थे, क्योंकि हमारा बैलेंस हो नहीं पाता था. और दफ़े-दफ़े चढ़ने और गिरने और उतरने के बाद में हमको ये समझ में आया कि बैलेंस कैसे बनता है, फिर हमें साइकिल चलाना आ गया. ओके? अब देखिए कि ये साइकिल चलाना कैसे आया? ये साइकिल चलाना आया हमारे मस्तिष्क से, ना कि हमारे मसल्स से. हमारे मसल्स के अंदर एक मेमोरी होती है, हमारे सारे शरीर के अंदर एक बोध होता है, एक एनर्जी होती है, एक मेमोरी होती है. उसको एनर्जी को ट्रेन करने की ज़रूरत है, जो हमारा मस्तिष्क कर देता है, हमारा दिमाग उसको ट्रेन कर देता है. जब उसको वो ट्रेन कर देता है, तो फिर हम साइकिल के ऊपर चढ़ते हैं आराम से और उतर भी जाते हैं. लेकिन जो आपको नहीं मालूम है, वो ये है कि हमारा जो बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी है, mechanism of the balancing of the body, that is also controlled by the brain. So brain वेट को अपने आप लेफ्ट से राइट, अप ऊपर से जो है वेट को मैनेज करता रहता है, और ये न्यूरॉन्स के जरिए होता है, न्यूरॉन्स के जरिए होता है. तो मतलब ये सारी की सारी बैलेंसिंग ब्रेन करता है. दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि पहली बार होती है फिर वो बन जाती है. भले ही वो गाड़ी चलाना हो, या गाड़ी बनाना हो, या कंप्यूटर चलाना सीखना हो, या कंप्यूटर चलाना करना हो. इंटरनेट के आने की वजह से हुआ ये कि सब लोगों से जुड़ गए, और आज सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है. तो ये सैम ऑल्टमैन ने जो किया, उन्होंने ये किया साहब ने, कि सारी दुनिया का डेटा उठा करके उन्होंने मिलियंस ऑफ अलग-अलग बकेट्स बनाए, और हर एक चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी. यानी आप ये हिसाब लगाइए कि जैसे उन्होंने तकरीबन 1 करोड़, दुनिया की आबादी है तकरीबन 8 करोड़ के करीब, तो हमारे अंदर हम लोग 100 के करीब एक्टिविटीज़ या 200 के करीब एक्टिविटीज़ करते हैं, और वही एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे रिस्पॉन्सेज़ वही होते हैं. जैसे कोई हमें चुटकुला सुनाता है तो हमें हँसी आती है, कोई हमें बुरी बात कहता है तो हमारे अंदर एक वी गेट, वी डोंट लाइक इट, एंड वी टेंड टू रिटॉर्ट, राइट? एंड वी गेट एग्रीवेटेड, एंड एग्रीवेशन आ जाती है. तो इन सब चीज़ों का सम्मिश्रण करके उन्होंने करोड़ों बकेट्स के अंदर उस डेटा को डाला, और उस डेटा से उन्होंने रिस्पॉन्सेज जनरेट करने शुरू कर दिए कंप्यूटर के ऊपर. जैसे हम आज से पहले मेल लिखते थे, अब मेल लिखने से पहले या व्हाट्सएप लिखने से पहले ही अगला शब्द की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है हमारी स्क्रीन के ऊपर. वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. उसी तरीके से हमारी इंटेलिजेंस भी जो है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक
अवतार बनाया गया जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। चलते चलते हुआ ये, जो कि किसी ने सोचा नहीं था, कि ये इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल हो जाएगी कि ह्यूमन आइडेंटिटी को बीट कर देगी। अब वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो हमारे अंदर एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू, आईक्यू एंड ईक्यू, जिसके बलबूते के ऊपर हम अपनी जिंदगी का निर्वाह करते हैं या जिंदगी को चला सकते हैं। जो हमारा आईक्यू है, आइंस्टाइन का आईक्यू 155 का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 155 का आईक्यू था। साइंटिफिक अमेरिकन एक जर्नल है जिसने चैट जीपीटी के आईक्यू को एनालाइज करने की कोशिश की, और उन्होंने ये समझ में आया कि चैट जीपीटी का आईक्यू 150 है। मैं अपना आईक्यू तकरीबन 60-65 की रेंज में समझता हूँ, और लोगों का आईक्यू नॉर्मली इसी रेंज के अंदर होता है। जो बिल्कुल ही पिछड़े हैं, जो नालायक, जिन्होंने, आई शुडंट बी सेइंग नालायक, जिनका जिंदगी का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, या जो लोग ज्यादा विकसित नहीं हो पाए किसी भी वजह से, उनका आईक्यू शायद थोड़ा कम होता है। और जो लोग जरा ज्यादा घूमे हैं, जिन्होंने बहुत सारी दुनिया देख ली है, वहां से आईक्यू आता रहता है। अब ये देखिए, आँख की पुतली कितनी खूबसूरत सी चीज़ है, इसके अंदर एक हिमालय पर्वत समा सकता है, बशर्ते ये कि हम इसे खोलने की कोशिश करें। अगर हम अपनी आँखों को बंद रखेंगे, तो हमें कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी आँख को खोलते हैं, इसके अंदर पूरे का पूरा आकाश, पूरे की पूरी धरती, पूरे का पूरा समुंदर, पूरे के पूरे हिमालय पर्वत को आप इन आँखों के अंदर ले जा सकते हैं और उनको महसूस महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं। इसके अंदर हमारी शिक्षा पद्धति की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कभी बढ़ावा नहीं दिया। तो चलते-चलते हुआ ये कि जब ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बनाया गया, तो इसे यूँ बनाया गया कि अब आपका एक शीशा बन गया है। क्योंकि आप ऐसी कोई भी चीज़ आज नहीं करते हैं जो आप पहले ना कर सकते हों। आपको जूते के तस्मे बाँधने हैं तो आप बाँध चुके हैं, तो इसलिए आप ट्रेन्ड हैं। अब उसने जूते के तस्मे बाँधने को भी ट्रेन कर दिया है। आप खाना बनाते हैं तो आप ट्रेन्ड हैं, अब उन्होंने शेफ़ को ट्रेन कर दिया है। जापान में आप जाएँ, वहाँ पे रोबोज़ हैं जो कि खाना बनाते भी हैं, और लज़ीज़ खाना बनाते हैं, और खाना सर्व भी करते हैं। क्योंकि वो सर्व करना भी एक कला है, और उसको एक ही तरीके से सर्व किया जाता है, कोई ये तो है नहीं कि उल्टा लटक के आपको सर्व करता है। तो उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को स्टडी कर लिया डेटा के ज़रिए, और उस डेटा को उन्होंने तब्दील कर दिया एक ह्यूमन बीइंग में। और इस कदर तब्दील कर दिया कि 2 चीज़ें होती हैं। एक कहते हैं सेंटियंस, यानी महसूस करने की क्षमता, और दूसरी जो होती है वो उसे कहते हैं सेपिएंट। सेपिएंट का मतलब इंटेलिजेंस की क्षमता। अब जो कंप्यूटर्स बने, और ये जो कंप्यूट टेक्नोलॉजी जो बन रही है, एआई टेक्नोलॉजी, इसके अंदर महसूस करने की क्षमता भी है, और इसके अंदर किसी चीज़ को पूरा करने की क्षमता भी है। महसूस करना क्या होता है? महसूस करना, हम किसी भी चीज़ को अपनी 5 इंद्रियों के से महसूस कर पाते हैं। यू हैव द सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट, साइट एंड हियरिंग, राइट? सो दीज़ आर 5 सेंसेस जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को महसूस कर पाते हैं। उन्होंने ये प्रणाली को इतना विकसित कर दिया है कि अब आपका कंप्यूटर आपको महसूस कर सकता है, और महसूस करवा भी सकता है। यानी एक कंप्यूटर जो है वो एक मशीन बन गया है जिसकी एक जीवन है। और नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आज रिसर्च इस कदर हो रही है कि नैनो इंसर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर ये माना जाता है कि आने वाले 20 साल के बाद में आदमी इमॉर्टल हो जाएगा। अगर आपका घुटना खराब हो गया है तो उसके अंदर एक नैनो चिप इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो आपका घुटना ठीक हो जाएगा। अगर आपके रिंकल्स आ गए हैं, तो नैनो चिप्स इंसर्ट होंगे, आपके रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी कहीं और जा रही है, जिसका बोध हमें नहीं हुआ। ये तो थी बड़ी एक एक्साइटिंग बात जो मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया हूँ कि कैसे, जैसे साइकिल से हम लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, उस तरीके से उसने आदमी का डेटा लेके अब आदमी को ट्रेन करना शुरू कर दिया है, और आदमी की ज़रूरत खत्म होती जा रही है। और यहाँ पे एक विषय उठता है, बड़ा गहन और अंधकारमय विषय। वेरी डार्क रियलिटी इज दिस, दैट जितने भी लोग आज किसी भी काम में काम कर रहे हैं, उनका काम आने वाले टाइम में खत्म होने जा रहा है। इसका एक उपाय है। इसका उपाय ये है कि तुरंत वो एआई के अंदर घुस जाएं, बजाय इसके कि वो राखी सावंत के वीडियो देखें और ये सब नालायकी का काम करें, जो कि अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसके ऊपर में भी हम बात करेंगे कि क्यों होता है, कि ये क्या जो एल्गोरिदम्स हैं, ये जो एल्गोरिदम्स अमेरिका में बनाए गए फेसबुक को चलाने के, या जो शॉर्ट वीडियोस को चलाने के एल्गोरिदम बनाए गए, इसके अंदर हमें कूड़ा करकट क्यों दिखाया जाता है, जबकि अमेरिका के अंदर उन्हीं एल्गोरिदम्स के जरिए उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, प्रोग्रेसिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, सैटेलाइट का ज्ञान उन्हें कराया जाता है, जियोस्पेशियल डेटा उन्हें दिखाया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में हमें सिर्फ ये
या तो पॉलिटिक्स दिखाया जाता है या कुछ गंद एक बॉलीवुड का हमको दिखाया जाता है, तो हम वो बन जाते हैं जो हम देखते हैं। और इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारी इंद्रियों पे पड़ता है। सेइंग इन इंग्लिश इट सेज यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड योरसेल्फ, राइट? तो आपके आसपास जो 5 लोग हैं, उसका कहीं न कहीं आप सम्मिश्रण बन जाते हैं। तो अब आप देखिए हमारे बच्चे आज के दिन में क्या देख रहे हैं? जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, उसके अंदर क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है। दूसरा, ये प्रोडक्ट आज से 18 साल पहले जो शॉर्ट वीडियो है, इस प्रोडक्ट को आज से 18 साल पहले हमने इसके ऊपर शोध किया इन लैबोरेटरी इन अमेरिका। उस शोध के अंदर हमने ये किया कि जो शॉर्ट वीडियो हमने बनाया, उसको फिर हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे करके हमने बच्चों को दिया और हमने कहा इसे आप ट्राई करिए। उन्हें बड़ा पसंद आया, उन्हें रस आने लगा, उनका दिमाग बड़ा अच्छा फैसिनेट होने लगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये एक वीडियो आता है, फिर ये एक आता है, फिर ये एक आता है। अब आप देखिए आईक्यू क्या है? आईक्यू होता है पैटर्न रिकॉग्निशन। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17। आप बोलेंगे 12 नहीं आना चाहिए, तो ऑड नंबर की श्रृंखला चल रही है, राइट? लेकिन 12 आया, तो हम इसे आईक्यू मानते हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन। उसी तरह इवन नंबर्स हो गए या क्या। लेकिन इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, ये वीडियोस के अंदर कोई पैटर्न नहीं है। और जब आप वीडियो देखते हैं, तो दरअसल आप नहीं देख रहे हैं, आपकी आंख देख रही है। आपकी आंख के पीछे न्यूरॉन्स देख रहे हैं, उस न्यूरॉन्स के पीछे एक दिमाग देख रहा है जो आपकी हार्ड ड्राइव है। अब होता ये है कि जैसे जैसे आप इन वीडियोस को देखते हैं और फ्लिप करते हैं, वैसे वैसे आपके दिमाग के न्यूरॉन्स फ्लिप होने शुरू हो जाते हैं, राइट? बिकॉज कुछ तो अंदर हो रहा है ना, तो इसलिए आप देख रहे हैं। अब जब न्यूरॉन्स फ्लिप होने शुरू हो जाते हैं, तो दिमाग की ट्रेनिंग की जा सकती है। जैसे जैसे उदाहरण स्वरूप, आप रोज सुबह गाड़ी से अपने घर से निकलें और ऑफिस पहुंच जाएं, तो आपको समझ आता है कि मैं अपने ऑफिस आ गया। और आपसे ये पूछा जाए कि लेफ्ट राइट कहाँ किधर मुड़े, कैसे ब्रेक लगाई, कैसे, आपको कुछ याद नहीं है, बिकॉज आपकी बॉडी को ट्रेन कर दिया गया है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हमारे दिमाग की ट्रेनिंग कर दी है इन वीडियोज ने, जिसमें हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली फ्लिप हो रहा है, एंड इट इज कॉन्स्टेंटली फ्लिपिंग 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 फ्लिपिंग, जिसकी वजह से हमारे अंदर इनोवेट करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान, कहने को हम लोग अपने आप को विश्व गुरु कहना चाहते हैं, और अच्छी बात है, हमें ऐसा सोचना भी चाहिए और प्रधानमंत्री का एक अच्छा ख्याल है। लेकिन इसको गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है कि विश्व गुरु बनने के लिए हमें अपने दिमाग को सबसे पहले संतुलित करना पड़ेगा। उसको उसको किस किस्म से संचारित, कैसे सींचा जाना चाहिए उस दिमाग को, उन सब चीज़ों को हमको सोचना पड़ेगा। और अगर इनको नहीं सोचेंगे, तो हम लोग कभी विश्व गुरु बन नहीं सकते, क्योंकि हमारी सारी की सारी अर्थव्यवस्था आज $3.5 ट्रिलियन के करीब की है। और $3.5 ट्रिलियन का एक अकेला ओपन एआई नाम की कंपनी, जो सैम ऑल्टमैन साहब की कंपनी है, वो बन गई है। $1 ट्रिलियन की कंपनी आज $1.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप सिर्फ फेसबुक का है। और इसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखी और उन्होंने इस बात का संज्ञान भी लिया, और अच्छा है, उनके दफ्तर ने भी इस बात का संज्ञान लिया। अब लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया हानिकारक है। वो क्यों है? क्योंकि आप देखिए, फेसबुक आज एक $1.5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी। हिंदुस्तान का तमाम मार्केट कैप, आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ 4 ट्रिलियन है। और यहाँ सिर्फ एक इकलौता फेसबुक है। अभी मैं एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरेकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लैरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रम्प, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इलॉन मस्क। अभी इन लोगों के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इनके जैसे सैकड़ों लोग हैं अमेरिका में। और अमेरिका का क्या है, आप देखिए कि अमेरिका की जो टोटल जनसंख्या है, वो हमारी जनसंख्या के अनुपात में एक चौथाई है। एक चौथाई है, दे 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन। और उनका जीडीपी जो है आज, वो $30 ट्रिलियन का है, जबकि हमारा जीडीपी $3.5 ट्रिलियन का है। तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे वहां तक? हम लोग तब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने दिमाग को संतुलित नहीं कर सकेंगे। इसे इसका एक नई पद्धति के हिसाब से हम लोग देख नहीं पाएंगे, और इसको दोबारा से ट्रेन करने की जरूरत है, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। वरना ये जो एआई है, चैट जीपीटी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर अब दोनों बोध हो गए हैं। दोबारा कहना चाहूंगा कि सोचने की शक्ति भी आ गई है, वो खुद सोच सकता है, और महसूस करने की शक्ति भी आ गई है। अब वो सूंघ सकता है, वो फील कर सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है। उसके अंदर वो सब शक्तियां आ गई हैं, भरपूर शक्तियां आ गई हैं, जिसकी वजह से कि आज एक एआई, एक आदमी का वो सब काम कर सकता है जो आदमी कर सकता है। इसको देखते हुए जो एंटरप्राइजेज हैं, वो बड़े उत्सुक हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें ये एचआर का झमेला खत्म हो जाए।
उन्हें कोई मतलब नहीं है आदमी आया नहीं आया, किसी का बीमार हो गया। एंटरप्राइजेस आर वेरी हार्ड क्रस्टी, दे आर वेरी वेरी हार्ड, बिकॉज उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप प्रॉफिट जनरेट करके दीजिए। और वो अगर आप देखें तो 30 से 40% समय किसी भी एंटरप्राइज का आज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स में जाता है। किसी की अकाउंटिंग करनी है तो किसी को एचआर का करना है, तो किसी के यहाँ कोई जन्म हो गया, कोई आ नहीं सका तो वो हो गया, कोई और बीमार हो गया तो वो आ नहीं सका, आज कोई फ्लाइट नहीं चली तो इसलिए काम नहीं हो सका। तो अब मशीन ही मशीन से बात करके खुद अपना काम कर लेगी। ऐसे संदर्भ में वो लोग विकास कर सकेंगे जो एआई बना सकेंगे। और एआई बनाना सरल है। एआई बनाना एक शेफ की नौकरी सीखने से ज्यादा सरल है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ। और इसका हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल भी हमने सेट करने की कोशिश की जो कि बड़े सक्सेसफुल हुए और लोगों को समझ आया कि ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी समय बहुत कम है। अगर हम अभी कुछ कर जाएंगे तो कर जाएंगे, वरना आने वाले साल 1.5 साल के अंदर कम से कम जो नीचे के स्तर की नौकरियां वो खत्म हो जाएंगी। कैसे? अब जैसे कॉल सेंटर में बच्चा जाता है, राइट, और आप फोन करते हैं स्विगी को या रेलवे को, तो आप कहते हैं आपको हिंदी में बात करनी तो एक दबाइए, अंग्रेजी में बात करनी तो दो दबाइए। अब वहां से मशीन से आदमी की या एक लड़की की आवाज आएगी, और उसे मालूम है कि अगर वो राकेश से बात करी तो राकेश शायद हिंदी में बात करना चाहेगा। तो शील से, हेलो राकेश, वुड यू लाइक मी टू स्पीक टू यू इन इंग्लिश और इन हिंदी? तो आपको अगर अंग्रेजी नहीं भी आती तो आपको हिंदी शब्द आपने सुन लिया तो बोले हाँ हिंदी हिंदी हिंदी, राइट। तो वो सारी की सारी, सारे का सारा आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी हिंदी में निपटारा उसका कर देगी। तो ये जो अलग अलग डेस्क बने हुए थे कि ये इंग्लिश का है ये हिंदी का है, वो खत्म हो गया। और सोचने की क्षमता क्योंकि उस लड़की को है, इसलिए वो सारे के सारे बच्चे खत्म हो गए जो कि कॉल सेंटर्स की जॉब को बड़ा एक अच्छा मौका समझते हैं और अच्छी एनवायरनमेंट है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब की सब तो ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनका वर्णन हमने अपनी किताब में भी किया है, विच इज कॉल्ड द रोड हेड 2.0। वो क्यों अब किताब के ऊपर बात करते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो पहली किताब जो द रोड अहेड लिखी गई वो बिल गेट्स ने लिखी आज से 30 साल पहले। द रोड अहेड बिल गेट्स ने जब लिखी 30 साल पहले, तो उसका लिखने का मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि किस किस्म से टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लाएगा। क्योंकि 30 साल पहले लोगों को कोई समझ नहीं थी कि क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा। तो लोग समझ नहीं, क्योंकि हमारी सोचने की क्षमता भी बड़ी क्षीण और बड़ी कमजोर होती है। हम सोच नहीं पाते हैं बहुत सारी चीजें। और वो इसलिए भी नहीं सोच पाते क्योंकि हमारी न्यूरल स्विचिंग हो रही है, जो हम फ्लिप करते रहते हैं, फेसबुक करते रहते हैं, एक्सेट्रा फ्लिप करते रहते हैं, इसकी वजह से भी तो हम लोग सोच नहीं पाते हैं। तो इसी के ऊपर उनकी किताब का नाम था द रोड अहेड, और जो हमने किताब लिखी है उसका किताब का नाम है द रोड अहेड 2.0। क्योंकि ये नई सड़क बन रही है, ये नया आयाम बन रहा है, इसके चलते हर एक चीज अपने सिर के ऊपर खड़ी हो जाएगी। और जो मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था फेसबुक का, कि कैसे वो एक $1.5 ट्रिलियन की कंपनी है जिसके अंदर के 2.5 बिलियन सब्सक्राइबर हैं। यानी हर सब्सक्राइबर से फेसबुक आज सोते हुए भी अपना $600 फेसबुक कमा रहा है। 2.5 बिलियन सब्सक्राइबर जो हैं, अगर उसको आप 6 से गुणा करें तो आप 1.5 ट्रिलियन पे पहुंचते हैं। 600 से गुणा करें तब आप 1.5 ट्रिलियन पे पहुंचते हैं। तो मतलब ये कि राकेश, आप और मैं, $600 फेसबुक आपसे और हमसे कमा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम उससे क्या कमाते हैं? कुछ नहीं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जनसंख्या है जो कि अपना या तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या हम जैसे लोगों को फंसा लेते हैं और हम लोग देखते रहते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता है कि क्यों है। एक जैकेट खरीद लेते हैं, फिर एक पैंट खरीद लेते हैं, फिर ये चीजें करते रहते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो हम लोगों के सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ही हमने जो जो वाईओएल जो हमने बनाया, वो इट वाज क्रिएटेड बेसिकली विद दैट इंटेंट कि दिमाग के अंदर गार्ड रेल्स फिट हो जाएं, जिससे कि आदमी का दिमाग उसके शरीर से बाहर ना जा पाए। पहले, सबसे पहले वो अपने आप का आकलन करे, और जब वो अपने आप का आकलन करता है तभी वो बाहर की चीजों के बारे में सोच सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर अर्जुन गए और उनका स्वयंवर था और उन्हें कहा गया कि यहाँ एक मछली है और इस मछली की आंख पे आप तीर चलाएं, और ये खौलता तेल है जिसके अंदर आप देखें, तो वो चला सके क्योंकि वो देख रहे थे। अब आप हिसाब लगाइए कि मैं कहाँ हूं। मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा ओरिजिन क्या है। फिर मुझे ये पता चलना होना चाहिए कि मेरी जो
इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो क्या है, लेकिन आजकल बच्चों को कोई समझ नहीं है। मैं कॉलेजेस में जाता हूँ और मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, एंड आई इनवाइट सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट्स देयर, एंड आई ब्रिंग देम अपॉन द स्टेज एंड आई से टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में आप दो बातें कहिए मुझे कि आप कौन हैं। कोई बच्चा सोच नहीं पाता है, कोई बच्चा मेरे से 1 मिनट से ज्यादा कोई बच्चा बता नहीं पाता है कि मैं हूं कौन। और मैं एक बहुत बड़ी चीज हूं, क्योंकि जब मैं आंख खोलता हूं, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, तो हम जब आंख खोलते हैं तो इसके अंदर पूरे का पूरा हिमालय पर्वत समा सकते हैं, पूरे का पूरा समुद्र हम समा सकते हैं, पूरी दुनिया हम समा सकते हैं। लेकिन उस दुनिया को समाने का, हिमालय पर्वत समुद्र को समाने का कोई फायदा नहीं है जब तक हम उसे एनालाइज करने की शक्ति और क्षमता अपने अंदर उत्पन्न ना कर पाए। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, यस, यस। आपने बहुत डिटेल में, बहुत डीपली बताया। इवन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एकदम डूब गया उसमें। और मैं इवन कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे तो मतलब आई जस्ट फॉरगॉट दोज़ क्वेश्चंस कि बिकॉज़ वो जो आपका पैटर्न था, जो वी आपने जो डीप डाइव करा उसमें, बिकॉज़ कि आपने कई सारे एरियाज़ पकड़े कि भई अभी हम बात करते थे व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें लगता है कि वो रीज़निंग कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हैं, एक लॉजिकल असर्शन वो कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये जो आपने बताया, अब वो फ़ील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, उस तरह से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। जैसे हमारे व्यूज़ या एक्सप्रेशन आते हैं, उस तरह से वो करते हैं। सेकेंडली जो आपने एक बात करी जो रील्स की है, जो वीडियोज़ की जो है कि फ्लिप होते रहते हैं, इसमें मैंने ये देखा है कि आजकल का जनरेशन क्या इज़ नॉट लिमिटेड टू यंगर जनरेशन, या बड़े-छोटे सब एज ग्रुप में। तो बिकॉज़ वो 1 मिनट का रहता है रील्स, या बहुत शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं, बहुत तेज़ी से फ्लिप करते हैं। और ये कुछ लोगों ने खुद भी शेयर करा है कि उससे क्या होगा, उनका जो अटेंशन स्पैन है, जो फ़ोकस स्पैन है, वो रिड्यूस हो गया है। कुछ भी काम करते हैं तो थोड़ी देर तो काम में मन लगेगा उनका फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद लगता है कि कुछ दूसरा काम करें। तो फॉर मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो फ़ोकस ही नहीं कर पाते उसमें। अब इसमें जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया था कि साइक्लिंग का, तो मुझे याद आ रहा था जैसे हम ड्राइव भी करते हैं, चाहे साइकिल है, चाहे कार ड्राइव करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं, क्या बिकॉज़ आवर माइंड इज़ ट्रेन्ड। तो एकदम उसी तरह से हम ड्राइव करते जाते हैं अनलोनली इन अ सेम पाथ, जहाँ भी हमें जाना है हम पहुँच जाते हैं। तो ये आपने मतलब बहुत क्रूशियल पॉइंट्स टच करे इसमें कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सब करने लगेगा तो हमारा तो पूरा रोल ही रिप्लेस हो जाएगा। तो करेक्ट। जब ये सारी चीज़ें हैं तो इसमें अब ये जो आपने बताया कि तो अब ह्यूमैनिटी और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ये इंटरसेक्शन है। इन तो क्या ये करें? जैसे आपने बताया कि ये डीप रूटेड है दूसरी जगह से। अच्छा, ये एल्गोरिथम का जो आपने बात कही, बिकॉज़ ये वी हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे जो दिखाएगा एकदम कंटेंट डिफरेंट दिखाएगा। बिकॉज़ इवन लोग जैसे मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड देख रहे हैं, स्पेस रिलेटेड देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड देख रहे हैं। लेकिन जो एल्गोरिथम है वो उनको ऐसा दिखाएगा जो एंटरटेनमेंट फ़ोकस ज़्यादा है। Which is not primarily contributing to in a productive solution or a product that way। तो ये चीज़ बहुत देखने को मिल रही है। अच्छा, ये सब चीज़ इसमें क्या कार्य करा जाए, कैसे एडजस्ट करा जाए? बिकॉज़ के हैं तो इसमें मतलब चाहे हम हों, चाहे मतलब बच्चे हों, चाहे यंगर जनरेशन हो, लोग हैं तो इसमें। नाउ एवरीबॉडी इज़ अगर हमारा फ़ोन जो है अभी 1 घंटे के लिए भी हमसे दूर हो जाए तो हमें बेचैनी होने लगती है। इवन करेक्ट। अगर कहीं डिस्चार्ज हो जाए तो हम जस्ट टू एंड फ्रो वी रन हियर एंड देयर कि कहीं से हम उसको रिचार्ज कर लें। तो कुछ ऐसे छोटे स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं। क्या करा जाए कि जो उस चैलेंज को एक तो समझ सके, पहली चीज़। दूसरा, उसके हिसाब से हम कैसे अपने को अडैप्ट कर सकें या अडॉप्ट कर सकें अपने आप को। चाहे करेक्ट। हम प्रोफेशनल लाइफ में हों, कुछ जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, या हम एक स्टूडेंट हों। क्योंकि मैं देखिए अगर यंगर जनरेशन में स्टूडेंट्स की बात करें, तो मैं बहुत चैलेंजिंग पाता हूँ। आज का टाइम और पिछले कुछ साल पहले का टाइम। पहले हमारे पास के रिसोर्सेज़ भले ही कम थे, लेकिन हमारे पास इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। आजकल तो मैं देखता हूँ इफ अ स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, तो वो
एक अपर एज में रहेगा अगर वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। एकदम मिनिमाइज तो नहीं कर सकता, बिकॉज की डिजिटल लर्निंग भी होती है हमारी, देयर इज आल्सो पॉजिटिव वे टू लर्न। तो क्या कुछ ऐसे स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं कि जिससे हम इसको या तो पहला तो प्रॉब्लम को समझ सके, दूसरा अपने को कैसे अडेप्ट कर सके इन ब्रॉडर इंटरेस्ट। ओके, सो इसके ऊपर हमने किताब में भी बहुत लिखा, एंड आई होप पीपल विल टेक नोटिस ऑफ दिस। सबसे पहला तो ये है कि जो हमारी पेडागॉजी है, जो कॉलेजेस स्कूल के अंदर पढ़ाने का तरीका है, उसे बिल्कुल वो बिल्कुल तरीका ख़त्म हो चुका है, उसका अब कोई मायने नहीं रहा। और मैं जितने भी आपके लोग, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड हियर, बट जो लोग भी यहाँ पे अभी हैं, आई लाइक टू से बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि जाके प्रिंसिपल से पूछिए कि आप एआई के अंदर क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो एआई नहीं पढ़ा रहे हैं और वो उन्हें दो दूनी चार ही करना सिखा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उदाहरण स्वरूप, पहले आदमी को जमा, तकसीम या गुणा या भाग करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फॉर ऑल दीज थिंग्स यू हैड टू डू इट ऑन पेपर, राइट? कागज के ऊपर आपको करना पड़ता था। सो आप कागज के ऊपर लिखते थे 2 4 7 9 6 5 3 2 1 डिवाइडेड बाई 12, चलो बेटा इसको करो। तो आप कागज के ऊपर करते थे। डिवीजन का पेज अलग होता था, मल्टीप्लिकेशन का पेज अलग होता था, जमा का पेज अलग होता है और अभी भी होता है, और सब्ट्रैक्शन का पेज अलग होता था। उसके बाद में कैलकुलेटर नाम की चीज आ गई। जब कैलकुलेटर नाम की चीज आ गई, तो सारी की सारी चीज कैलकुलेटर में तब्दील हो गई। आज सबसे अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट या अच्छे से अच्छे सीए को या मैथमेटिशियन को आप यही सवाल दीजिए और कहिए इसे कागज पे करके लाओ, तो कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मतलब कागज पे क्या करके लाओ, ब्लडी कैलकुलेटर लाओ और उसके ऊपर में करो। दैट्स व्हाट ही वुड से, ही गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई एम सॉरी इफ आई यूज द बैड वर्ड, बट क्योंकि दिमाग हमारा उस मानस पटल से इस मानस पटल पे आ गया है। हमको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आज जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कागजी है। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपको गुणा, भाग, तकसीम और जमा करना सिखाया गया पुराने टाइम में। और आप ये समझिए कि अब एक कैलकुलेटर नाम की एक व्यवस्था आ गई है जिसके ऊपर आप ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो मतलब ये कि जो भी आपको आज के दिन में पढ़ाया जा रहा है वो कूड़ा है। मैं शायद एक स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे शब्दों के हेर-फेर के साथ में घुमा-फिरा करके, टॉफ़ी रैप करके भी प्रेज़ेंट कर सकता हूँ कि ये नहीं-नहीं अच्छी चीज़ है, इसके अंदर ये भी होना चाहिए, ये भी, इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारा का सारा बेकार कर दिया जाना चाहिए। और लोगों को एक एआई लैब इंस्टॉल करना चाहिए, स्कूल्स के अंदर भी और कॉलेजेस के अंदर भी। क्या है एआई लैब? अब आप कॉलेजेस के अंदर जाएँ तो वहाँ पे वो आपको ले जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लैब है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का लैब है, ये डेटा का लैब है, ये वीएलएसआई का लैब है। इस किस्म से आपको अलग-अलग लैब दिखाए जाते हैं। ये लैब्स क्या हैं? ये लैब्स अंग हैं एक पूरे के पूरे शरीर के। एआई क्या है? एआई पूरे का पूरा शरीर है। तो आपको ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अलग-अलग लैब्स के डिस्ट्रैक्शन से बचा करके सीधा अगर आपको कैलकुलेटर पे ले ले जाया जाए, तो उसी को कहा जाएगा कि एक एआई लैब का आप गठन करें अपने स्कूल में और अपने कॉलेज में। एआई लैब से क्या होगा? एआई लैब से बच्चों को ये समझ आएगी, भले ही इलेक्ट्रिकल हो, भले ही मैकेनिकल हो, लेकिन उसे ये एक होलिस्टिक ओवरव्यू मिलेगा। क्योंकि अब वो समय चला गया कि ये कहाँ से चीज़ आ रही है या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तब ये जाके ये किस चीज़ से तार से जुड़ता है, तो कंडक्टर होता है, तो उसके बाद में इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाती है एटसेट्रा, वो सब चीज़ें खत्म हो, उन सब चीज़ों का कोई 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 उन चीज़ों का कोई फ़ायदा रहा नहीं, बिकॉज़ वो कागज़ था। अब ये एक नया ऐप, एक नया एक आदमी आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि लोगों को एक-एक एआई लैब अपने-अपने स्कूल में, अपने-अपने कॉलेज में तुरंत गठित करना चाहिए। दैट्स नंबर 1। एआई लैब गठित कर देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। उसके बाद में हमारे अपने बच्चों को सोचने की क्षमता देनी चाहिए, व्हिच इज़ कॉल्ड फर्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जैसे रिसेंटली हमने देखा कि एक रॉकेट ऊपर गया और उस रॉकेट को वापस उसी के कंटेनर के अंदर उतार लिया गया, राइट? दैट्स व्हाट ही डिड। या इलॉन मस्क डिड दैट, राइट? वो क्यों किया?
इसे कहते हैं फर्स्ट थिंकिंग। पहले रॉकेट जाता था, वो ध्वंस हो जाता था, खत्म हो जाता था, पर उसने ये सोचा कि $50 मिलियन का मैंने एक रॉकेट बनाया जो जाता है, अपना काम करता है और खत्म हो जाता है। अगर इसी रॉकेट को मैं वापस इसी की जगह पे ले आऊं तो मेरा ये $50 मिलियन बचेगा। इसे कहते हैं फर्स्ट लर्निंग। तो वो फर्स्ट लर्निंग को, हमको सेंस ऑफ फर्स्ट लर्निंग को इनकलकेट कराना चाहिए बच्चों के जहन के अंदर। और जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उन्हें भी अपने आप को, अपने आप के आसपास की हर एक चीज को नई निगाह से देखना चाहिए, नए नजरिए से देखना चाहिए। ये है, इसके साथ क्या कर सकता है? इट कुड बी अ बॉटल, इट कुड बी अ रेफ्रिजरेटर। किसी को ये समझ नहीं आया कि आज एक रेफ्रिजरेटर, जो कि पुराने जमाने में एक बड़ी नायाब सी चीज होती थी और लोगों के घरों में कम ज्यादा होते थे, आज एक बड़े से बड़ा रेफ्रिजरेटर आप ले आइए सैमसंग का या कोई, तो 75,000 का खूबसूरत सा लंबा चौड़ा रेफ्रिजरेटर आ जाता है। लेकिन एक छोटा सा फोन लेने जाए तो 1.5 लाख का है। ऐसा क्या है कि रेफ्रिजरेटर में और फोन में ऐसा क्या है? क्योंकि हम लोग सोच नहीं पाते हैं। आप नेहरू प्लेस में जाइए दिल्ली के अंदर, 10वीं फेल लड़का आपका कंप्यूटर को लेकर के, उसको खोल के क्रैक करके कोड को बना के वो वापस कंप्यूटर आपको दे देता है। सी, स्किल है, ऐसा नहीं है कि स्किल नहीं है, पर वो स्किल उस लड़के ने सीख ली। लेकिन इसी के चलते मैं ये जानना चाहता हूं कि हमने क्या किया? कंप्यूटर हमने खुद बना क्यों नहीं दिया? यू अंडरस्टैंड? आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी, आप अभी कुछ देर समय पहले कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी आई, अब लोग सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप टेक्नोलॉजी ले आइए, कोई भी सीख लेगा। आपका नौकर भी सीख लेगा, आपका घर में काम करने वाला भी सीख लेगा, आपका ड्राइवर भी सीख लेगा। टेक्नोलॉजी बनाना, मजा तो वहां है कि आपने कुछ बनाया। आपने बनाया क्या? हिंदुस्तान में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं फिर कहना चाहूंगा कि या तो हम एक सैटेलाइट का निर्माण करते हैं, या दो चार हमने जहाज बनाए जो कि अभी उनके ऊपर चल रहा है, रिसर्च चल रही है, कहीं कुछ फेलियर्स वगैरह हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम लोग सिर्फ प्लास्टिक की बाल्टियां बनाते हैं या मग बनाते हैं। गाड़ियां तो हम लोग कोई बनाते नहीं, बनाते हैं, जरूर बनाते हैं, लेकिन वो गाड़ियों की टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? एक टाटा का ट्रक बनता है, उसका इंजन कहाँ से आता है? एक महिंद्रा की गाड़ी बनती है, उसका इंजन कहाँ से आता है? हम लोग क्यों फोर्जिंग में नहीं जाते हैं? और ये अगर कुछ कॉलेजेस के लोग हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि हमें अपने फोर्जिंग प्लांट लगा देने चाहिए। बनाओ, इसके अंदर क्या बना सकते हो बनाओ। हमारे अंदर हम फेलियर को एक बुरी निगाह से देखते हैं। हमारा जो कंप्लीट सोचने का नजरिया है वो गलत है। इस नजरिए को बदलना होगा, और अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो ये खुद ब खुद बदली हो जाएगा। क्योंकि ये अब जो सुनामी एआई की आने वाली है हमारे ऊपर, ये एक बहुत बड़ा अभिशाप बनेगी अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो दो चीजें जो आपने सवाल पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, हर एक कॉलेज और स्कूल के अंदर एक एआई की लैब होनी चाहिए, और बाकी जितनी लैब्स हैं उन सबको कोने में रख देना चाहिए, और बीच में एक एआई की लैब होनी चाहिए कि ये मनुष्य है, इस मनुष्य को चलाने के लिए तुमको फिजिक्स की जरूरत है तो यहां से ले लो, केमिकल की जरूरत है तो यहां से ले लो, नैनो पार्टिकल बनाना है तो यहां से ले लो। तब लोगों की समझ को विकसित होने में विकसित होगी। एजुकेशन पहले क्या था? एजुकेशन वॉज ऑल अबाउट टीचिंग, तो कोई पढ़ाता था। टीचिंग टू लर्निंग, तो कोई सीखता था। लर्निंग टू नोइंग, तो जब सीखता था तो उसे समझ आती थी। नोइंग टू डूइंग, तब वो कुछ कर सकता था, राइट? सो टीचिंग, लर्निंग, नोइंग, डूइंग। अब क्या है? अब आपको टीचिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज टीचिंग तो मेरी यूट्यूब से भी हो सकती है, बशर्ते ये कि मैं राखी सावंत के बजाय कोई ढंग की चीज देखूं, राइट? तो यूट्यूब से भी मेरी लर्निंग हो सकती है। तो नोइंग भी वहां से हो सकती है, लेकिन मेरा दिमाग तो अभी चल रहा है कि क्रिकेट का क्या होगा और इसका क्या होगा। इसका मेरी अपनी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी जिंदगी से उन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। जैकी श्रॉफ मेरे अच्छे मित्र हैं, वो अक्सर मुझे कहते हैं, योगी, जिस चीज का बाजार के कांदे से कोई मतलब नहीं है, उस चीज का तेरे से कोई मतलब नहीं। व्हाट इज कांदा? इज प्याज, और प्याज हर एक घर में इस्तेमाल होता है। तो जो चीज प्याज के दाम को इफेक्ट करती है वो आपकी जिंदगी को इफेक्ट करती है, वरना सब ये सब गड़बड़ घोटाला है। यू अंडरस्टैंड? अब उसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग लगा लीजिए कि प्याज लाना है तो प्याज के लिए पैसा चाहिए, पैसा कितना चाहिए, वो कहाँ से आएगा, तो वो आप बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लीजिए और आपको सब समझ आ जाएगा कि व्हाट इज इट दैट जैकी सेज, ही इज एन अमेजिंग गाय। एनीवे, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये दुनिया बदली हो गई है, और हम लोग अपनी आंखों को खुला रखते हुए भी हम लोग आज प्रसुप्त अवस्था में हैं, सोए हुए हैं। इससे हमें जागने की बहुत ज्यादा अहम जरूरत है। सो जस्ट टू थिंग्स, वंस अगेन, at the cost of sounding repetitive, set up an AI lab. You can't do it at home. Go to your college and tell those fellows who are running your college, sir, एक AI lab तो बना के दीजिए।
ये VLSI से क्या होगा? अब आप देखिए चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहे हैं, हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं। जो चिप्स हिंदुस्तान में बनेंगे वो सब 20 nm के ऊपर के नैनो वो सब जो 20 nm के ऊपर के चिप्स बन रहे हैं, जबकि एआई और इन सब चिप्स के लिए आपको 2 mm 1 mm के चिप्स चाहिए, वो है ही नहीं हमारे पास। तो ये जो 20 nm के ऊपर के चिप्स हैं, ये क्या काम करेंगे? ये आपके कोई दरवाजे को खोल देगा, कोई पर्दा आपका नीचे गिरा देगा या उठा देगा। ये काम करेंगे जो छोटे-मोटे, ऐसा नहीं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। लेकिन इन चिप्स के अंदर जो कि कम होना चाहिए, पहली बात। अब हम बात करते हैं नौकरियों के ऊपर। यू नो वी आर इन द फ्लो, आई लाइक टू स्पीक अ लिटिल अबाउट कि जॉब्स को क्या होगा। तो जॉब्स को एक बहुत बड़ी आने वाले समय में क्षति होने वाली है, और वो क्षति अभी भी हो रही है। कैसे? आज हिंदुस्तान अबाउट 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जो कि 7% के अनुपात दर से भी अगर हम माने तो वो ग्रो कर रहा है एट 7% एनुअली, विच मीन्स नेक्स्ट ईयर अराउंड द सेम टाइम ऑन दिस डेट ऑन विच यू एंड आई आर सिटिंग, द 26th of January 2026, 7% more than 3.5 or $4 trillion would have gotten added into the economy of the country, right? 7% of, even if it is 4 trillion, hypothetically speaking, इवन इफ इट इज 4 ट्रिलियन, तो 280 बिलियन डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर नए तरीके से शामिल होंगे, उनकी उत्पत्ति होगी। वेरी गुड। 280 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे? होटल से आएंगे, हाईवे से आएंगे, एफएमसीजी से आएंगे, स्टील से आएंगे, सीमेंट से आएंगे, कंक्रीट से आएंगे। ये 280 बिलियन डॉलर वहां से आएंगे, लेकिन 10% भाग इसका मान के चला जाए कि एचआर में भी जाएगा। अब हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, राइट? तो 280 बिलियन का 10% होता है 28 बिलियन। अब 28 बिलियन नौकरियों में जाएगा, तो 28 बिलियन से सब लोगों को तो नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस 28 बिलियन के भी दो विभाजन करने होंगे। एक 14 बिलियन उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी कार्यरत हैं, जो कि ऑलरेडी नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो कि आज नौकरियां कर रहे हैं उनको भी तो इंक्रीमेंट चाहिए, वो भी तो इसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, और वो भी तो ग्रो करेंगे 7% अगर अर्थव्यवस्था ग्रो करी। तो 28 बिलियन से रह गया 14 बिलियन। 14 बिलियन को अब आप तकसीम करिए अबाउट क्लोज टू अबाउट 10 मिलियन स्टूडेंट्स। 1 करोड़, 1 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि इस अर्थव्यवस्था में हर साल नए, या 2 करोड़ या 1 करोड़ या 2 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद में जो इसके अंदर शामिल होते हैं, या ग्रेजुएशन से पहले भी अगर शामिल हो जाते हैं, तो 2 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि इस 14 बिलियन को का संचार अपनी जिंदगी में कर पाएंगे। अगर आप उसको आप इससे डिवाइड करें, तो यू रियलाइज व्हाट आर यू लेफ्ट विद अबाउट $1,000 पर इंडिविजुअल पर ईयर। $1,000 आज एक रिक्शा वाला कमाता है, और शायद ज्यादा कमाता है उससे। $1,000 सारे साल में, मतलब $1,000 मतलब अब 87 का हो गया डॉलर, तो 87,000 रुपया आज एक रिक्शा वाला कमाता है। तो नौकरियां नहीं है, पहले भी नहीं थी। ये गलत है, ये अपवाद है कि हमारे पास नौकरियां हैं और हम बना दें। हम लोग नौकरियां नहीं बनाएंगे, ना ही हम बना सकने में सक्षम है। हमें नौकरियों की उत्पत्ति करनी पड़ेगी। वो कौन करेगा? वो ये स्टूडेंट्स करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स अभी कॉलेजेस में जाते हैं, या गाना बजाना करते हैं, या ये राखी सावंत ये सब नॉनसेंस देखते हैं। इन लोगों को अपने दिमाग को उस गंद से निकालना पड़ेगा, जिस गंद के अंदर इन लोगों का दिमाग ग्रसित हो चुका है। और सिर्फ एआई वीडियो देखो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एआई को देखो। गार्ड रेल्स डेवलप करो अपने दिमाग में। पहले अपने आप को खुद समझो कि मैं कौन हूं। ऐसा कोई भी बच्चा आपके जो ये प्रोग्राम सुन रहा है, उसको मैं 10 लाख रुपए सालाना की नौकरी देने के लिए मैं ऑफर कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, बशर्ते ये कि वो बगैर चूके वो मेरे से बात करे 10 मिनट के लिए, और मुझे बताए कि वो कौन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा 2 मिनट से ज्यादा मुझे अपने बारे में नहीं बता सकता कि वो है कौन। है कौन का मतलब ये नहीं मेरे भाई बहन कितने हैं, मेरे माँ बाप कौन है, मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना जाना कहाँ पे, बस वहां पे बात खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या? हु आर यू? तो टिल सच टाइम, और उसी को आयाम को अग्रसर करने के लिए हमने ये जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया था, विच इज कॉल्ड YOL। उसको बनाने का तरीका ही ये था। उसको अब हमने एआई के हिसाब से उसको हमने स्वरूप देने की कोशिश की, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में
समझने में लोगों को देर लगी कि हाउ इज इट दैट दे विल एक्चुअली बी एबल टू adopt it, etc. But we came to England and people loved it there. The British Parliament invited us for a presentation. We made they loved it. United Nations loves it, and the countries outside love it. But in India, we take it to a university or to a college, and the professor says, "Sir, I'm a little busy because I've got mechanical engineering to teach." My God, whatever you got to do with mechanical, what are you going to teach them? I go to universities, ये गाड़ी हमारी चलती है पानी से, ये गाड़ी चलती है हाइड्रोजन से, चलती है तो why have you not been able to commercialize it? So end users, I go to labs today and people say this is a drone lab. Very good. It's a drone lab. What is the end use of a drone? Drones people will buy. Who will buy the drone? The large format companies that have come up, the factories that have come up are already building drones. Those drones will already have a vision. Who is their customer? Who is your end customer? Are you going to sell your drone to Bikaner Wala and say, sir, I will go ahead and start delivering your stuff to Yogi's house? So first think of the end use. If there is an end use, only then get into it. And every single thing has an end use. Okay, so now to sum up the whole thing, I like to say, and I've got an idea. AI के चलते अब AI agentic AI आ गया है, which is to say that every AI will develop its own agents. What is an agent? An agent is a servant. It could be a servant that cleans your house, that orders your groceries, that tells you what's in your fridge, what's not in your fridge, etc. That sort of a thing. So that agentic AI is what is needed, and the total number of agents, AI agents that are required are close to about 1 crore agents are required in the world. So if boys and girls can start adapting to through an AI lab, through the necessary AI education, can start adopting and start creating those AI agents, I think that's a huge opportunity area. Other than for that, your management will be impacted. Your mechanic, there are plants that Xiaomi has set up a factory. They're turning out 42 cars per hour, EVs per hour in Beijing. 42 cars per hour, not a single human being on the shop floor. Not a single human being on the shop floor. So, what I'm saying is this, that there's a huge amount of opportunity in the agentic AI space. अगर बच्चे समझने की कोशिश करें ये agentic AI क्या है, ये एजेंट क्या है, मेरे को एक एजेंट बनाना है और उस एजेंट का एंड यूज समझें कि इस एजेंट का एंड यूज क्या होगा, देन आई थिंक देयर इज अ स्कोप. और वो भी बड़ा कम विंडो है उसके लिए. मैं अगेन आई लाइक टू वॉर्न यू, सिर्फ 6 या 7 महीने का विंडो है. बिकॉज अगर ये 6 या 7 महीने में कोई बच्चा निकल जाएगा तो निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद में एजेंटिक एआई भी ओपन एआई ही बना करके आपको दे देगा. आपको सिर्फ उसको कहना पड़ेगा कि मेरे को ये ख्याल आ रहा है कि कि मैं एक एजेंट बना दूं जो कि एक नर्स को ये बता दे कि मेरे दादाजी बीमार हैं और उनको हर रोज उनका बीपी चेक हो जाए. और वो बच्चा अगर आज बना देगा तो बना देगा, नहीं तो 6 महीने के बाद में एक बच्चा यही चीज अपने मुंह से, जबान से, लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो जबान से ही कहेगा ओपन एआई में जाके या चैट जीपीटी को, आई वांट एन एजेंट दैट कैन गो अहेड एंड चेक द पल्स रेट एंड द ब्लड प्रेशर ऑफ माय ग्रैंडफादर हु इज सिटिंग एट होम. वो एजेंट खुद ब खुद वहां पहुंच जाएगा, भले ही उनके फोन से पहुंच जाए, कहीं से भी पहुंच जाए, उनका रिमाइंडर भी कर लेगा, उनको कह भी देगा कि ये फोन आप हटा दीजिए, फलाना फोन ले लीजिए, एंड यू विल जस्ट नीड टू प्रेस योर फिंगर ऑन इट सो दैट आई कैन चेक योर थिंग. सिंपल. तो कुछ इस किस्म की चीजें बच्चों को बनानी चाहिए. I was recently at a university, the boy came up to me, said, what should we do? I said, you have an Uber, you have an Ola, right? And then you have on one end you've got thing like was that वो flower supply करते हैं, ferns and petals. आज हर एक कॉलोनी के बाहर ferns and petals वाला एक आदमी खड़ा है जो कि फूलों का गुलदस्ता बना देता है, दे देता है. क्यों नहीं इन सब फूलों के बच्चों, फूल बेचने वालों का एक एग्रीगेशन हम बना सकते हैं, एक छोटा सा ऐप बना दो. तो फर्न्स एंड पेटल्स को आपने हार्म किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. हार्म भी नहीं किया, उनको भी आपने ग्रो करने की कोशिश की, लेकिन आपने उन सब लोगों को एक ऐप के माध्यम से जोड़ दिया. अगर वो फूलों का गुलदस्ता बना सकता है तो एक आदमी आकर के वो फूलों का गुलदस्ता वहां से उठा के आपके घर में दे भी सकता है. भाई बीकानेर वाला आपका खाना थोड़ी पहुंचाता है, खाना तो कोई राइडर कंपनी पहुंचाती है. अब खाना बनाता कोई और है, पहुंचाता कोई और है, बिलिंग कोई और करता है, खाता मैं हूं. सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट एंड प्रोडक्ट. वो एंड प्रोडक्ट जो हमारा माइंडसेट है वो अनफॉर्चुनेटली हमारा मिसिंग है, जिसके अंदर हमें
सोचना चाहिए कि यूज केस क्या है। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं या पढ़ाई जा रही है, इसका यूज केस, हाइड्रोट्रोपिक एसिड, व्हाट विल आई डू विद दिस सर? नहीं, इसका ये फॉर्मूला बनाओ, ये नीला पीला हो जाएगा, जरूरत नहीं ना सर, मेरे को बताओ इससे बनेगा क्या। हाँ अच्छा, इससे नैनो टेक्नोलॉजी, हाँ अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी से क्या बनेगा? प्लास्टिक बनेगा। प्लास्टिक से क्या बनेगा? हाँ, प्लास्टिक से अच्छा कुछ और भी बन सकता है। मे बी आई कैन क्रिएट अ चिप आउट ऑफ दिस, यू नो। तो वो नैनो पार्टिकल से कोई चिप बनाया जा सकता है। उसके ऊपर लोगों को ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय इसके कि ये जो पढ़ाया जाता है, जो कि बरसों से पढ़ाया जा रहा है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है और ये खत्म हो गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने और प्रोफेसर सीताराम, जो कि खुद एक दिग्गज हैं, आगे तक मौका मिला, जो कि 2 वॉल्यूम में है, 700 पेजेस में है। और इस किताब के पीछे का ध्येय ही ये है कि सब चीजें जो पुरानी थी वो खत्म हो गई। अब हमें पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए कि भगवान राम ने क्या किया था इसलिए हम ये कर रहे हैं, बिकॉज वो अपनी जगह थे। सतयुग था, वो खत्म हो गया, अभी ये कलयुग है। इस कलयुग को हमको इसमें जीने के लिए वो चीजें पॉसिबल नहीं है जो कि वहां पे उस समय पॉसिबल थी। इसलिए अच्छा है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। जी, थैंक यू। बहुत डिटेल में आपने बताया और ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि मतलब मैं खुद उसमें डूब जा रहा हूँ इस डिस्कशन में। जैसे आपने 2-3 पॉइंट्स ऐड करे, जस्ट आई एम जस्ट रिपीटिंग कि एक या तो होलिस्टिक ओवरव्यू रखें। हम एक या पोर्शन में ना देखें कि ये अलग है, एक होलिस्टिक ओवरव्यू में देखें एआई को। करेक्ट। और आपने एक सजेशन दिया, जैसे एआई लैब्स ओपन करी जाएँ कॉलेजेस, स्कूल में, जिससे कि करेक्ट। उसको एआई को इन टोटैलिटी हम उसको समझ सकें। ऐसे नहीं कि हम क्या व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड या दूसरे फंक्शन या टेक्नोलॉजी की हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू अंडरस्टैंडिंग एआई फॉर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, तो वो हमें समझ में आए। करेक्ट। दूसरा जो आपने सबसे जो आई थिंक महत्वपूर्ण बात बोली है वो कि फर्स्ट लर्निंग, जो उस पे भी हम बहुत ध्यान रखें, बिकॉज़ एआई इज़ वन थिंग और हम हमारा खुद का लर्निंग क्या है? बिकॉज़ करेक्ट। व्हाट इज़ आवर ओन इनोवेटिव अप्रोच टू मेक द बेस्ट यूज़ आउट ऑफ दिस एआई? तो उसपे बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे आपने रिफ्लेक्शन किया, कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्शन करा तो अपने बारे में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, बता पाए। तो फर्स्ट लर्निंग हमारी, हम कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, एआई आ जाए या जो भी हो जाए, बट हमें अपनी फर्स्ट लर्निंग, अवर ओन लर्निंग और रिफ्लेक्शन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और करेक्ट। टीचर्स को या जो जो भी लर्निंग कम्युनिटी है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। और इसमें मैं बस क्विकली, बिकॉज़ कि कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके व्यूज़ आए हैं, बस मैं जी। क्विकली गो थ्रू करता हूँ। जी। विशाल लाइक Vishal Devalia is liking the session very much. Thank you, Vishal. And and another user is name not mentioned is greeted both of us and liking the session. They are appreciating Shivojit Chima. He is also like appreciating the session and the discussion going on. विकास एमेनुअल इन्होंने मेंशन करा है, द स्पीड एट विच दिस एआई टेकिंग ओवर इज हैपनिंग इज अलार्मिंग एंड फास्ट, दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग. द environment impact of the AI is very less talked about and they're neglected as well. So I think Vikas, your views are already taken here by our honorable speaker. So we will certainly shed a further light and reflection on that. And Dr. Padmakali Banerjee has mentioned that it's inspirational, great Yes. session that you are talking about. So thank A good you. friend, and she's a very eminent educationist. Yes, I respect her a lot. Yes. Okay, thank you, Dr. Padmakali, for joining us here. And another audience has mentioned that what are the top few things you would recommend youngster to develop this capacity? So I think कुछ आपने इसमें already बताया हुआ. If you want to add any I'm able to read this. Let me just quickly sum it up. So I'm sorry I'm snatching it away from you, but I just also need to quickly sum it up. I had to go somewhere. So दो चीजें, एक तो ये that we have to start thinking differently. In order to start thinking differently, you start peeling the layers of every single thing that comes to you. और सोचिए कि ये क्या है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ। अगर उससे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तो उसे छोड़ दीजिए। जैकी श्रॉफ ने कहा, कांधे के भाव से जिसका मतलब नहीं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। तो उस राखी सावंत को छोड़ छोड़ दो जिससे आपका कोई मतलब नहीं। जैसे जैसे आपका दिमाग खाली होना शुरू होगा,
वैसे वैसे उसके अंदर नई चीजें आने की क्षमता बढ़ेगी. So that's one. Dimitrios Aslamis is trying to say that he has a question: how come an emerging technology that we've developed on mosquito diseases control, which has been appreciated in China? Dimitrios, I don't have an answer to this, but you'd have to essentially come to India. You'd have to speak to the manufacturers here, and then take it through the whole story. Unfortunately, we are not an innovative nation, and I say this again with a lot of sense of responsibility. We are not. In the year 2022, when we were writing this book, we discovered that 75,000 patents were granted, and only 500 of those did actually get operationalized. Today, there's a huge amount of challenge. We go to universities and colleges, they say everybody in a university is a PhD. Very good. But how many of these PhDs have actually become successful commercially is the point, right? So we do a patent and we do a research and we get a PhD, but what has that PhD got to do with the rest of the humanity is what we have to look at. So end use case uska kya niklega. And on that note, I think we've cleared the time. We're nearly the end of the time, but I can take on one last question from you, if you will. Yes, I think the key point, the crux of the message is to what is the its end use. Yes. I think so. This is the crux point. So I think जो जो भी हम करें उसका देखिए उसका end use कहाँ पे है. End use कहाँ पे, how it is contributing to society or the people or the business or the work in whatever dimension and areas. वो Right. जरूर देखें, then it will be very helpful. So okay, and thank you, Rajat Singh Gaur mentioned it's a good debate. So okay, I thought these comments are not visual, but okay, good that these are visible to you, so are you you are able to read it all. So आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा एंड पर्सनली स्पीकिंग जब आप बोल रहे थे तो इवन मैं एकदम डूबता जा रहा था उसमें डिस्कशन में, इट इज आल्सो वेरी गुड एंड एक्सपेंडेड लर्निंग फॉर मी. तो उसमें क्वेश्चंस का सीक्वेंस, जो भी क्वेश्चंस थे ओवरऑल आपने कवर कर लिए हैं. एनी लाइक यू आर मेंशनिंग वन पॉइंट, आई थिंक दैट लाइन यस्टरडे व्हेन वी टॉक्ड अबाउट दिस blank black blank cat and this one, can you Yeah, so that I was saying that हिंदुस्तान की अवस्था ये है इस वक्त कि हमारे बच्चों को धकेल दिया गया है. पहली बात तो वो सबके सब अंधे हैं, और दूसरी बात उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है. और अब वो ये सोशल मीडिया और ये एआई की वजह से हमारी अवस्था ये हो रही है कि वी आर ऑल लाइक ब्लैक ब्लाइंड मेन एंड वुमेन इन अ डार्क रूम विद आवर आईज ब्लाइंड फोल्डेड. एक तो आंख पे पट्टी बांधने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि हमारी आंखें ही अंधी हैं, लेकिन उसके ऊपर भी पट्टी बांध देते हैं. अच्छा ओके, अब क्या करना है सर इस कमरे में? अब यहाँ एक काली बिल्ली को ढूंढा जाए. ये हो रहा है सही मायने में अगर आप मुझसे पूछें कि ये हो रहा है हिंदुस्तान में. और इससे बाहर निकलने की, और मैं प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, उन सब लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर से, अपने बॉसेस से, अपने स्टूडेंट से ये पूछिए, व्हाट इज इट दैट यू गोइंग टू डू विद दिस सर? यू टेलिंग अस टू डू दिस, इसका होगा क्या? ये बताइए ना, एंड यूज क्या है? So हमको सबको प्रोवोक करने की जरूरत है. Some of the other people like Dimitrios etc. are wanting to know how can they. Well, people can connect with me on LinkedIn, and I think we can take the whole thing forward from there on. Yeah, so one last point because वो मैंने मिस कर दिया था. You mentioned about the YUL platform. So yeah. how the people, our audience, can connect to that It's platform an it's an it's more? an institutional platform Okay. that go there and works on AI thinking. How do you inculcate AI thinking in your own system? And to do that, we've created this platform. The basics of doing AI thinking is first to understand yourself. And that is what the platform promotes. Once you start understanding yourself, then all these other deviations and digressions they fall off, because then you're able to understand and realize your own true worth. सबसे पहले हमको अपने आप को जानना जरूरी. अब एआई कैसे बना? एआई ने सबसे पहले आपके डेटा को पहचाना, तो एआई बना. आपने क्या किया? क्या आप अपने आप को पहचान सके? अगर आप अपने आप को ही नहीं पहचान सके तो आप कभी एआई बन नहीं सकेंगे. यू विल नेवर बी एबल टू बिकम एन एआई एक्सपर्ट or an AI user. Maybe we all become, but we never be able to do anything with AI till such time as we first don't get to know ourselves, because the basics of AI is data, and the data is generated by us. We generate the data and we feed it there,
And unless so the BioL platform that we've created is an app which has been approved by AICTE, and AICTE is recommending it as an essential app for basics of. It is like the ABCD of, if you want to learn the ABCD of an AI mindset. How do you get to the ABCD of that AI mindset? Is why you should want to use that app. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि इफ यू कैन शेयर अ लिंक विद मी और फ्रॉम योर साइड, आई विल शेयर फॉर द लार्जर ऑडियंस। You can just share my LinkedIn profile or my LinkedIn handle. I ओके, think if you were to do that, that'll just be sufficient. Yeah. ओके, 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 थैंक यू सो मच। Thank और you. yeah, just very quickly, the last, like I requested you to use English and Hindi both, and your Hindi has been excellent. आपकी हिंदी मुझसे भी बहुत अच्छी थी, so thank you very much for this speaking such a I great realize that. language. Thank you. And so, so we have already exceeded the time. So I from audience side, सारे audience की तरफ से और पूरी or from our own team. I again I thank you so much for this being part of this sixth episode of Growth Talks with Rakesh, and we will keep learning from your insight and reflection in a different ways and in times to come. So Thank you. thank you so much for Thank joining you us. so much. Thank you.